Hello students, I am Ghanen Chaudhary from Gurukul Public School, Khairaligarh. This is the 11th video lecture for class 12th student. Your subject is chemistry and your chapter name is haloalkanes and haloarenes. We already discussed in previous lecture number 10. The topic is reaction with metals. Okay, but in today our lecture number is 11. We are discuss about the Wurtz reaction. Okay, what is the Wurtz reaction? When alkyl halides react with metals just like sodium in presence of dry ether, so sodium metal remove the halogen atom from the alkyl group, and alkyl group are linked with another alkyl group to form alkane, and sodium after linked with halogen to form sodium halide. Okay, now see Wurtz reaction. Alkyl halides react with sodium in dry ether to give hydrocarbons. What is the product? Hydrocarbons corresponding double the number of carbon atom. Okay, प्रेजेंट इन एल्किल हैलाइड. जितने एल्किल हैलाइड के अंदर कार्बन एटम होते हैं उसके जस्ट डबल हाइड्रोकार्बन के अंदर होते हैं. ठीक है, आफ्टर द ट्रीटेड विद सोडियम मेटल. ओके, दिस रिएक्शन इज नोन एज Wurtz reaction. Okay, see the example. 2 mole of alkyl halide, it is the alkyl group, it is the halogen halide. When react with sodium metal, the sodium metal remove the halogen from the alkyl halides. ठीक है, the carbon halogen bond are break and new bond form with sodium metal. Okay, it form NaX. Okay, and both alkyl group are linked with each other to give hydrocarbon just like alkane. Okay, another example, CH3Cl, it is the alkyl halide. Okay, we put the 2 mole, 1 mole is there and 1 mole is there, CH3Cl. Okay, when react with sodium metal attract the chlorine atom towards, because sodium is the more electropositive than comparison to carbon atom. Chlorine is more electronegative, so always electropositive and electronegative are strongly attract with together. Okay, and form a stable compound just like NaCl. Okay, and both alkyl group are linked with each other to form hydrocarbon just like alkane. Okay, clear? This CH3 and this one are linked with each other to form CH3 and Na linked with both chlorine atom and to form 2 NaCl. Okay, next and very important, reactions of haloarenes. It is the very important. Okay, so listen very carefully. First one is nucleophilic substitution reaction. You already study about the nucleophilic substitution reaction. Okay, now see, aryl halides are extremely less reactive towards nucleophilic substitution reaction than comparison to alkyl halides. Alkyl halides are more reactive, but aryl halides are less reactive than comparison to alkyl halide. Okay, due to the following reason. इसके पीछे जो रीजन है वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं. फर्स्ट रीजन इज रेजोनेंस इफेक्ट. इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट. ओके, फर्स्ट वन इज रेजोनेंस इफेक्ट. सो टुडे वी discussed only about resonance effect. Okay, it is the very important for studying of all organic chemistry. It is the very important. Okay,
So let us see. In haloarenes, the electron pair of halogen atom are in conjugation with pi electrons of the ring, and the following resonating structure are possible. Okay, let us see. यहाँ पर मैं थोड़ा सा हिंदी यूज करना चाहूँगा अच्छे से समझने के लिए. ओके, इट इज द एरिल हैलाइड. ओके, एरिल मीन्स अ benzene ring, just like benzene ring. Benzene ring shows the resonance. You know well, benzene ring shows the resonance due to the partially double bond in all over ring. Okay, when chlorine atom attached with benzene ring, so you know well, chlorine is more electronegative element and carbon is electropositive. So this bond is partially polar bond. Okay, it is the electropositive, it is the electronegative, but benzene ring so the resonating structure. Okay, so you know chlorine have the number of lone pairs. Okay, chlorine atom have the number of lone pair electron in the valence shell, just like 6 electron are unbonded and 3 lone pair. So due to the availability of the lone pair, so the lone pair of chlorine are donate the electron for कार्बन एटम. ऐसे समझें, यहां जो कार्बन एटम है बेंजीन रिंग में इस जगह पर, जिससे क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है, और यही कार्बन एटम इस वाले कार्बन एटम से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है. इसने इसके साथ डबल बॉन्ड बना रखा है. ओके, सो आप देखते हैं कि जो क्लोरीन एटम है किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन एटम के साथ. तो ये क्लोरीन एटम कहता है भाई कार्बन तूने अपने इससे बना रखा है डबल बॉन्ड, तो एक काम कर, मेरे पास लोन पेयर है, मेरे पास ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास खाली पड़े हुए हैं, बॉन्डेड नहीं है भाई, मैंने तुझसे एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग कर रखी है, तो एक इलेक्ट्रॉन मेरा मुझसे ले ले. तो क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम को दे देता है. जैसे ये इस कार्बन एटम को देगा अपना एक इलेक्ट्रॉन, जब ये देगा तो इस पर कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव. तो ये कार्बन एटम 4 बॉन्ड से ज़्यादा बना नहीं सकता. एक बॉन्ड इसके साथ पहले से था, एक इसके साथ था 2, और 2 इसके साथ थे, कितने हो गए 4. जब ये इसके साथ बनाना चाहेगा क्लोरीन के साथ, तो मजबूरन इसको इसके साथ डबल बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा. ओके, तो जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इस पर चार्ज कैसा आया, नेगेटिव, और ये घबरा जाता है, इसके अपना डबल बॉन्ड तोड़ता है. ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज कहाँ आया, थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर, ये नेगेटिव चार्ज को देख, अरे यार ये तो क्लोरीन ने धोखा कर दिया. ये क्या करता है, अपना चार्ज इस पर ट्रांसफर करता है. क्योंकि इस पर ट्रांसफर किस लिए हो जाता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ जो कार्बन एटम है, यहाँ पर आप अच्छे से क्लियर से देख सकते हैं, यहाँ जो कार्बन एटम है उस कार्बन एटम को भी कितने बॉन्ड की जरूरत है, 4 बॉन्ड की ना. इसने पहले डबल बॉन्ड इसके साथ बना रखा था, सिंगल बॉन्ड इसके साथ, और यहाँ पर जो प्रेजेंट एक हाइड्रोजन है एक उसके साथ, तो 4 बॉन्ड बना रखे थे. अब जब एक बॉन्ड यहाँ से टूट गया तो इसको एक बॉन्ड की जरूरत पड़ गई, बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, तो तुरंत ये जो चार्ज यहाँ पर आया था वो शिफ्ट हो जाता है इस कार्बन एटम पर. ओके, कहाँ पर शिफ्ट हो गया, इस कार्बन एटम पर. अब ये दिखा कि यार ये तो बड़ा धोखा हो गया. तो ये रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि बेंजीन रिंग रेजोनेंस शो करता है, तो ये भी कहता है भाई ये चार्ज बड़ा मामला गड़बड़ है, नेगेटिव है, हम तो नेगेटिव होते नहीं थे, तो नेगेटिव आ गया. तो ये कहता है चलो भाई इसको भी मैं भी आगे ट्रांसफ़र कर देता हूँ. तो ये इसको फिर आगे की तरफ ट्रांसफ़र करता है. आगे कहाँ भेजेगा, इस कार्बन एटम के पास. ओके, बट जब ये इस कार्बन के पास में भेजेगा, तो यहाँ पे आप देखते हो डबल बॉन्ड पहले से लगा हुआ है. अब ये डबल बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट होता है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है एक, क्योंकि ये जो कार्बन एटम है इसके भी 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, 1 2 3
और फोर्थ किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो ये आगे पहुंचेगा तो इसको 5 बनाने पड़ेंगे, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला इसको पीछे को शिफ्ट कर देता है इसकी तरफ कि भाई तू ले ले बॉन्ड। तो फिर भी बॉन्ड किस किस के बीच में बना रहता है, इस कार्बन एटम और इस कार्बन एटम के बीच में। ये देखिए, ठीक है। तो इसके भी कितने बॉन्ड हो गए, 4, 1 हाइड्रोजन के साथ, 1 इस कार्बन एटम के साथ 2, और 2 इस कार्बन एटम के साथ 4 हो गए। अब इसके भी 4 हैं ऑलरेडी भाई, 2 इस कार्बन एटम के साथ, 1 हाइड्रोजन के साथ, 1 इस कार्बन एटम के साथ में। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर नहीं रह पाएगा, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाता है, इस पोजीशन पे। इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। ये पोजीशन थी ऑर्थो पोजीशन, ओके। इसको हम बोलते हैं मेटा पोजीशन। तो अब जो चार्ज था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, पैरा पोजीशन पर। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ थे, अब नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस की वजह से फिर आगे की तरफ बढ़ेगा। जैसे ही आगे की तरफ चलता है तो आप देखते हो यहाँ क्या है, ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, क्लियर। अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, इस साइड होता है तो भी डबल बॉन्ड बना रहेगा इस पर, क्योंकि इसके ऑलरेडी कितने 4 बॉन्ड हैं। तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाता है, बैक साइड में, इधर हो गया। आप देख रहे हो 2 बॉन्ड इसके साथ हो गए, एक इसके साथ हो गया 3, एक हाइड्रोजन के साथ 4। तो यहाँ पर नहीं रुक पाएगा, कमी कहाँ पड़ी, आगे वाले पर पड़ी, जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, बॉन्ड पीछे शिफ्ट हुआ। तो यहाँ देखते हैं आप कि यहाँ पर इसके पास कार्बन एटम के साथ कितने बॉन्ड हैं, 1, 2 और 3rd हाइड्रोजन के साथ, इसलिए नेगेटिव चार्ज कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। अब नेक्स्ट फिर आगे पहुँचेगा, आगे शिफ्ट होगा, क्योंकि कहाँ से आ रहा है, क्लोरीन की तरफ से। जब क्लोरीन ने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे तो क्लोरीन पर चार्ज कैसा आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ देख रहे हो आप क्लोरीन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, पार्शियली डबल बॉन्ड है, ओके। फिर दोबारा से ये पोजीशन आती है सेम फर्स्ट वाली। इसीलिए एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड में कार्बन हेलोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है एरिल हैलाइड्स में देन कंपेरिजन टू एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं होता, डायरेक्टली कार्बन हेलोजन के साथ लिंक रहता है और बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पर वहाँ कैसा बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था कार्बन और हेलोजन के बीच में। अब यहाँ देख रहे हो यहाँ कैसा बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। अब सिंगल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, डबल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है। सो ये रिएक्शन क्या होते हैं, ये वाले जो एरिल हैलाइड्स हैं ये थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं। मोर रिएक्टिव होने के लिए हमेशा बॉन्ड कैसा होना चाहिए, वीक बॉन्ड होना चाहिए, ओके। तो यहाँ देख रहे हैं डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो स्ट्रांग बॉन्ड है, तो ये इजीली ब्रेक नहीं होता है, इजीली ब्रेक नहीं होता, तो ये इसलिए थोड़े से लेस रिएक्टिव होते हैं, ओके। दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि ये जो चार्ज है इसका ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर शिफ्ट होता है। किस वजह से, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ से ले लिए थे। जब इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आएंगे तो अंदर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये आपको पहले बताया गया है, जब हम किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है और जब किसी को देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, ओके। आपको पता है बेंजीन रेजोनेंस शो करती है, क्योंकि ये चीज़ आपको 11th में ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज वो किस किस जगह पर पहुंच रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। और क्लोरीन के साथ कार्बन कैसा बॉन्ड बना रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, डबल बॉन्ड का। सो डबल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए एरिल हैलाइड्स क्या होते हैं, थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, ओके। क्लियरली। नेक्स्ट पॉइंट, carbon chlorine bond acquire a partial double bond character due to the resonance. The bond cleavage in haloarenes is difficult than haloalkane. Okay, cleavage means break होना। हेलोएरिन्स में कार्बन हेलोजन बॉन्ड का टूटना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है देन कंपेरिजन टू हेलोएल्केन्स, क्योंकि हेलोएल्केन्स में कार्बन हेलोजन बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, ओके। दे आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसलिए ये क्या होते हैं,
लेस सेलेक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।